opposite to photoelectric effect is? What is the question? Phenomenon which is just opposite to the photoelectric effect. So first you need to understand or you need to remember what photoelectric effect was. So photoelectric effect में क्या होता था? There used to be a metal surface and on that metal surface we used to incident मस्त अपना heavy वाला photon आता था और photon गिरता था and then हम लोगों को क्या मिलता था? Electron बाहर मिलता था. So basically this was our photoelectric effect. अभी हमें photoelectric effect के उल्टा effect चाहिए. क्या चाहिए? Photoelectric effect क्या? उल्टा effect. Okay. अभी photoelectric effect में exactly क्या हुआ? Photon जो कि energy था वो किस में convert हुआ? वो matter energy या फिर matter form में convert हुआ. देखो ना, आपने photon मतलब energy use किया और electron बाहर आया. Electron मतलब particle हुआ ना, तो particle माने matter, तो मैटर बाहर आया, एनर्जी दिया, मैटर बाहर. ऑन द अदर हैंड अगर आप बाकी के ऑप्शन देखोगे तो पेयर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज है, रेडियो एक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसमें एक्सरेज वाला जो एग्जांपल है ना वो बहुत यूनिक है. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू कंसीडर एग्जांपल ऑफ एक्सरेज तो उसमें हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं एंड ऑन टंगस्टन वी बम्बार्ड एक्सेलरेटेड पार्टिकल. तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो होता है, दैट एक्सेलरेटेड पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन दिस एंड ईएम वेव्स आर क्रिएटेड. दो जो होते हैं एक्सरेज. अभी एक्सरेज क्या है? एक्सरेज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हमने पार्टिकल दिया, पार्टिकल बम्बार्ड किया एंड एनर्जी लिया. तो बेसिकली वी आर गेटिंग उल्टा इफेक्ट. मैटर से हमें एनर्जी मिला. दैट इज वाई एग्जैक्ट उल्टा कौन हुआ? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज हुआ. ओके, नाउ let's study one formula and based on that formula we are going to solve series of question. जिसको भी कुछ नोट डाउन करना है तो मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलो. ओके, तो सर इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ओके. प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज. so production of x-rays is exactly opposite to the photoelectric effect. सर एक बार फिर से शॉर्ट में समझा दोगे? Yes, definitely. In case of photoelectric effect, we introduce energy and electron gets out. So you give energy, you get matter. On the other hand, in case of X-ray production, when accelerated particle is bombarded on tungsten, we get X-rays. That is, you give particle or matter to get energy. Energy you से get matter, X-ray. हाँ, energy से matter, matter से energy, उल्टा. That is why. Okay. Next one, question number 4. But before solving question number 4, there is a formula that you should be familiar with, and that is number of photons is actually given by the formula of power upon energy of single photon. Okay, but I would like you to remember it this way, number of photons per second. हाँ बोल. सर इसका तो वो भी फॉर्मूला था ना, n/t is equal to h. हाँ वही कर रहा हूँ. equal to वही ना. हाँ आपने सिखाया. n equals to p upon h nu. This is the formula. n मतलब number of photons per second है मेरा. अगर आपको चाहिए तो जैसे मेरिन ने बोला, you could also remember it as n/t. Okay, तो n/t equals to p upon h nu. But मुझे n ही पसंद है तो मैं n ही लिखता हूँ. n equals to power upon h nu. So you could modify this h nu and write it as hc by lambda also as per the requirement. Now let's try to solve question number 4. This is the concept that you will be needing. And question number 4 जैसे और questions हम लोग करने वाले. तो क्या बोलता है fourth question? A radio station broadcast at frequency of 100 megahertz. तो एक radio station है जिसका broadcasting frequency is 100 megahertz. Mega माने new दिया है, frequency माने, and 100 megahertz. Let me ask this particular thing to someone. आर्ची, what does मेगा मीन? मेगा का मतलब क्या होता है? मैग नो. आर्ची, what does मेगा मीन? सर एक ही आंसर आता है प्लीज. नो. दिशा, what does मेगा मीन्स? दिशा पिंगले, what does मेगा मीन्स? सर मेगाहर्ट्ज ना उसका फुल फॉर्म.
हाँ तो वो जो मेगा हर्ट्ज पता है, बट मेगा क्या होती है ये मत बोल, मेरे बाजू वाली लड़की का नाम है। व्हाट डज मेगा मतलब मीन? बिग उसके स्टेप्स रहते हैं, तो ये बड़ा टर्म है। हाँ हर्ट हाँ लाइक हाँ। एनर्जी रेडिएशन। तन्वी बोल रही है एक्सट्रीमली ह्यूज। अच्छा, दीपेश, व्हाट इज सर प्लीज मेगा प्लीज मीन्स? अरे सूरज, मैंने तुझे पूछा होमवर्क क्यों नहीं किया, तो तूने जवाब नहीं दिया मेरे को। अरे तुम लोग क्या सच्ची में कौन से डायलेमा में हो? अभी ये 12th का एंड आ गया और तुम लोग बोल रहे हो मेगा मतलब बहुत बड़ा वैल्यू। मेगा मतलब एग्जैक्टली कितना वैल्यू वो नहीं पता। हाँ बोल, मैं तेरे मन की शांति कर बताया। देते। 10⁻⁶। यस, इट इज 10⁻⁶। 1 million. हाँ तो यस, 100 मेगा मीन्स 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो आपने मेगा को कन्वर्ट कर दिया। सर नेट 5 मिनट में रिजॉइन करते हो, ठीक है वर्षा। तो ये मेगा समझा आपको। फिर उसके बाद क्या बोला, इफ द रेडिएटिंग पावर ऑफ द ट्रांसमीटर इज 66.6 किलोवाट। तो पावर दिया है 66.6 किलोवाट। किलो माने 1000, सो 66.6 इंटू 10⁻³ वॉट, ये भी लिख लिया। द नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकेंड, मतलब हमें n पूछ रहे। अरे ये क्या फालतू क्वेश्चन है, इसको उड़ा डालो, खत्म इसका खात्मा। n इक्वल्स टू p अपॉन h न्यू। पावर का वैल्यू 66.6 इंटू 10⁻³ h न्यू का वैल्यू, h का वैल्यू 6.6, देखो 6.63 होता है, आई एग्री, बट मैं अपने हिसाब से जुगाड़ करूंगा। इंटू 10⁻⁴ कितना होता है -34, राइट गाइस? -34। हाँ, न्यू का वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁶। अभी देखो एडजस्ट करते हैं। ये देखो 6.6 वन जा 60, 66 जो 10 हमें जा, करने तो दो 10 ना। हुआ। अच्छा ठीक है, करो फिर। भी आता है सर। मैं बोला 2-3 क्वेश्चन में सर बड़ा होगा, फिर 10⁻30 आ जाएगा ना, 10⁻30। लेट मी चेक। ठीक है, सर सॉल्व बराबर है। करो। हाँ करो करो, आप करो। आंसर भेजा। 10⁻⁻31 ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में एक से एडजस्ट तो कर। अर्शिया करेक्ट आंसर। बी। तन्वी करेक्ट आंसर, यस इट इज बी। मैं तेरे को सच में सर क्वेश्चन इसलिए डायरेक्टली हो पूछ रही कि जाएगा बार ना, बार हैंड रेस कर। हाँ सर डायरेक्टली डायरेक्टली हो हो जाएगा जाएगा ये। ना। हाँ वही ना, हाँ 6.6 वन जा सर 66 क्या 10 सॉल्व जा, करूँ सर उसमें? तो ये 10⁻⁴ है। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 10⁻⁻34। ये सर ये 100 को ऊपर जाके 10⁻² -6 हो जाएगा। इंटू 10⁻6, बस पावर एडजस्ट कर दो, यू विल गेट हो गया सर, 30 व्हाट आ यू जाएगा। लुकिंग फॉर, 10⁻30। इसीलिए मैंने 6.6 में लिखा। एक थियरी क्वेश्चन करते गाइस, 6th वाला। इनफैक्ट मुझे मॉड्यूल से ज्यादा बेटर क्वेश्चन मार्वल के लगे, इसीलिए मैंने ये चूज किया। आई वाज लाइक लुकिंग एट मॉड्यूल एंड आई वाज लाइक यार इससे आंसर जरा बेटर इजी क्वेश्चन। वाटता है। हाँ ये मतलब ऐसे लेवल के, नीट लेवल के। 6th क्वेश्चन देखो, 6th भी इजी है, बट आपको आएगा नहीं जल्दी। आपको लॉजिक क्लिक होना चाहिए तभी आएगा। और अगर कोई आंसर निकालता है तो प्लीज सेंड इट ऑन प्राइवेट। आई विल गिव यू 1 मिनट, नहीं 1 नहीं, चल 2 मिनट दे देता है। वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, अपने को जितना शॉर्ट चाहिए उतना पिक कर डियर। क्वेश्चन नहीं समझा। कोई बात नहीं। आपने क्वेश्चन को डिवाइड करने की, एक किसने बोला मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा? सेजल। हाँ सेजल, पहले क्वेश्चन को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। चल सर क्या मैंने पढ़ा भेज तूने दिया। पहला सर स्टेप? करेक्ट है मेरा। एक मिनट एक मिनट। आ, एक मिनट, 666 ओके।
अली का करेक्ट है, अखिलेश का करेक्ट है, साक्षी इनकरेक्ट है। ओके हाँ, मेरे को बात बता सेजल, चल क्वेश्चन रीड करते हैं, जिसको डाउट आएगा वही क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अवनीश करेक्ट है? हाँ सर। हाँ बता मैं, हाँ पहला स्टेटमेंट In पर the क्या है? experimental arrangement of photoelectric effect, the metal surface is first illuminated with violet and then वो बस with बस सुन 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 ultraviolet. अभी हाँ अभी अभी सीन क्या है कि अल्ट्रा, पहला क्या बोला है, एक सरफेस है अपने पास, और वो सरफेस हमने किससे एलिमिनेट किया है? यूवी लाइट से ना? हाँ, violet violet, light violet. and ultraviolet light, फिर UV हाँ light, पहले वायलेट लिया है, फिर कौन सा लिया है? अल्ट्रा वायलेट। सेम सरफेस ultraviolet. है, पहले यूवी हाँ. वायलेट लिया, यूवी लिया, फिर क्या बोल रहे हैं? And stopping potential is determined in each case. हाँ तो पहले मतलब वायलेट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब VO निकाला, इसको VO1 बोलते हैं, और अल्ट्रा वायलेट के लिए VO2 निकाला। क्या क्लियर हुआ? हाँ. तो फिर क्या बोल रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल विल, मतलब Will. हमें प्रेडिक्शन करना है इन दोनों के बारे में, बट वो नहीं समझा क्या? फिर ऑप्शन पढ़, क्या बोल रहे हैं? बी मोर इन वायलेट लाइट, मतलब फर्स्ट केस में दे आर सेइंग कि VO1 का ज्यादा वैल्यू, होगा, हाँ VO2 से ज्यादा होगा. सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हैं कि VO2 का वैल्यू VO1 से ज्यादा होगा, यूवी ज्यादा का होगा. लाइट, करेक्ट। एंड थर्ड में बोल इक्वल रहे होगा बोथ थर्ड अभी, में. हाँ तो अभी क्या नहीं समझा क्वेश्चन समझा? हाँ हाँ. तो डायग्राम ड्रॉ करना। अच्छा गाइस, डोंट यू एग्री, अपने पास एक फॉर्मूला है, आइंस्टाइन का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV नॉट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, H न्यू माइनस फाई नॉट, एंड एट द सेम naught, टाइम हाँ, sir. काइनेटिक एनर्जी EV नॉट होता है, बराबर? H न्यू माइनस फाई नॉट, कंसिडरिंग दैट मटेरियल सेम है, मतलब बोला ही है वैसे भी, तो फाई नॉट सेम, EB सेम, HB सेम, can't you say that then stopping potential is directly proportional to frequency? तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, वायलेट का कि अल्ट्रावायलेट? Ultraviolet. अल्ट्रावायलेट का सर। अल्ट्रावायलेट, क्योंकि अगर आपको याद है मैंने ये सिखाया था, देखो विबग्योर करके, तो विबग्योर के पहले Yes, कौन है? यूवी होता है, और इसके बाद इंफ्रारेड होता है। और मैंने ये भी सिखाया था कि जो लेफ्ट मोस्ट होते हैं उनका वेवलेंथ छोटा होता है बट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो ज्यादा जो होती है लेफ्ट सर। वाला है यूवी उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो अगर यूवी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यूवी का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा, दैट मींस Yeah. VO2 विल बी ग्रेटर देन VO1। ये होता है लॉजिकल क्वेश्चन। तो आपको जो थियरी क्वेश्चन आएंगे नीट में वो ऐसे लॉजिक के ऊपर बेस्ड थियरी क्वेश्चन आएंगे। ओके, वन Sir. मोर क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर मतलब ये ऐसा कैसे आपको मतलब ऐसे हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला? मैं तो वो देख रहा था, वो आपने सिखाया था वो दो, तो सी कौन सा इज इक्वल टू 1/लैम्बडा वाला, नहीं वो म्यू इज इक्वल टू 1/लैम्बडा वाला, वो स्टेप्स ने सिखाए थे, इसमें ज्यादा होगा तो फोटो एमिशन होगा, इसमें कम होगा तो फोटो एमिशन नहीं होगा। बट उसमें वर्क फंक्शन किधर, सॉरी उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्लूड ही नहीं है ना, तो मुझे ऐसा है ना? फॉर्मूला मेरे, सर स्टॉपिंग आप- पोटेंशियल से ज्यादा हुआ तो फोटो एमिशन होगा, और उसमें नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, ऐसा हुआ। हाँ बट उसमें स्टॉपिंग किसमें, नहीं नहीं वो फ्रीक्वेंसी बड़ी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो कंफ्यूज हो रहा है। दैट इज न्यू नॉट, दिस इज V नॉट। हाँ 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 सॉरी, Excuse me, sir. समझा। बोल बोल, ये काइनेटिक एनर्जी वाला वापस बताओ ना स्टेप। कौन सा काइनेटिक, ये फॉर्मूला? हाँ, आपने फॉर्मूला दर- ये क्यों लिया? यही क्यों लिया? क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि मेरे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में ही सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एंड आइंस्टाइन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में ही H न्यू माइनस फाई नॉट है। तो मुझे दोनों को इक्वेट करने वाला, दोनों को रिलेट करने वाला कोई फॉर्मूला चाहिए था। मेरे सारे फॉर्मूला रट्टा थे, तो मुझे पता था कि कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा, तो अकॉर्डिंगली दैट आई चोज दैट फॉर्मूला। समझा? ओके. वो क्लिक होना चाहिए। वो क्लिक कब होगा? जब तेरे सारे फॉर्मूला रट्टा होंगे। जैसे मेरिन का देख कंफ्यूजन क्या हुआ, उसने सोचा कि न्यू नॉट का, बट उसने कंसेप्ट ही गलत समझा। तो अब अगर आप गलत कंसेप्ट समझोगे तो फॉर्मूला गलत याद आएगा, ऐसा। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद और आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। A source S1 is producing 10 raised to 15 photons per second. Okay,
क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, आप डायग्राम बनाओगे। मेरे को नहीं समझा, मैंने बनाया सोर्स S1 है, ये सोर्स 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो n का वैल्यू हुआ 10⁻15। वेवलेंथ भी दिया अपने को, लैम्बडा भी दिया इसके लिए, दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। फिर क्या बोल रहे हैं, अनदर सोर्स S2, चल डायग्राम बना दिया, ये प्रोड्यूस कर रहा है 1.02, दैट इज 1.02 into 10⁻15 फोटॉन्स। फिर बोल रहे हैं ब्ला 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 ब्ला, वेवलेंथ भी दिया है, वाह वाह वाह, ये N1 बोलते हैं, ये N2 बोलते हैं, कितना दिया है, 5001। ट्राई करना है, हाँ सर। यस करो। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ S2, मतलब P2 इसका पावर होगा, P1 इसका पावर होगा, तो उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए P2/P1 का रेशियो। अभी जिनको ट्राई करना है करो, आपको मैं देता हूँ 1.5 मिनट, 150 सेकेंड देगा, वो आप उसमें एडजस्ट करो। ये भी इजी है, डरने की कोई बात नहीं है। सर आंसर 1 आया मेरा, S2 नहीं बाय बताना S1 है किया मैंने। सबको, सर सर अभी सेम। राइट रॉन्ग थोड़ी ना मालूम है। तो मैं मतलब तू बताएगा उसके बाद मैं नहीं बताऊँ सबको, ये नहीं नहीं मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा ऐसे, तो टाइप नहीं करना है। सर आप बताओ ना। हाँ सर अभी वही हाँ, तो करूंगा। हाँ, अभी मैं कमेंट ही नहीं करूंगा। ओके, रिसेंटली जिसके 2 आंसर आए वो करेक्ट है, सेजल तोंडवलकर करेक्ट है, यादव जी करेक्ट है, शीतल इनकरेक्ट। वन मोर मिनट फॉर एंथुसियास्टिक पीपल, सोच के देखो कौन सा फॉर्मूला मैंने सिखाया था, सर ने आज सिखाया था, ट्राई टू थिंक अबाउट दैट फॉर्मूला। अर्शिया करेक्ट आंसर, मेरिन करेक्ट आंसर, अभिषेक करेक्ट आंसर। कुठला फॉर्मूला, हा फॉर्मूला मीन्स कुठला फॉर्मूला? चलो सेशन एंड होने से पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। n इक्वल्स टू, याद है मैंने सिखाया था आपको, P/h न्यू होता है, बट यहाँ पे लैम्बडा है तो हम लोग hc बाय लैम्बडा लेंगे, लैम्बडा ऊपर लेंगे, तो n विल बी p लैम्बडा अपॉन hc। अभी हमें पावर का रेशियो चाहिए, पावर को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ सबमिट करो, तो p विल बी nhc अपॉन लैम्बडा। क्या किया मैंने, hc को इधर भेजा, लैम्बडा को इधर भेजा। बाय नाउ यू शुड बी फैमिलियर विद दिस। कांस्टेंट टर्म्स कौन से है, तो h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, so you could directly write that power is directly proportional to n, inversely proportional to lambda। फिर अपना लॉजिक, P2 by P1 पूछा है ना, हाँ, तो P2 by P1 में
अगर समझो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो n2 बाय n1 आएगा, एंड लैम्बडा इनवर्स है तो लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2। तो खाली अभी आपको सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व करना है, यू विल गेट फाइनल आंसर। मुझे 1.0 सर वो सॉल्विंग में ही 1.10 आ रहा है। सर सर मैंने तो 1.10 वैसा किया। मुझे सर, मैंने हाँ, सर। 1.096 आ गया, तो उसको अगर मैं नहीं मेरे को सर, भी सॉल्विंग पे 1 आ रहा है 1.1 सर, टोटल 1 आ रहा है सर सॉल्विंग पे। परफेक्ट 1 आएगा, लेकिन मैंने फॉर्मूला से किया सर, मतलब पहले S1 निकाला, S2 निकाला, फिर S2 बाय S1 किया, ऐसा कुछ। हाँ तो चलेगा ना, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं तो टाइम बचाने के सर लिए ऐसा ही करने के बाद आया सर, 50 इंटू 1.02 से मल्टीप्लाई कर 10 देंगे, raised to 51 आ 15 जाएगा, upon फिर n1 51 बाय 51 कर देंगे, 1 आ जाएगा। उसको 1 बोल देंगे, हो गया खत्म। 1.02 into 10 raised to 15 upon 10 raised to 15 into लैम्बडा 1 कितना है 5000, ये हो गया 5100